Okay, yesterday we ended here. We covered some. We have covered brief intro of Jainism and Soul 24 MCQs. The rest of the MCQs we will solve tomorrow, and we will done with this Jainism chapter. Jainism chapter from tomorrow on. We will move to next chapter. We will move to the next chapter. Okay. Shiva Bhakti era. Okay, which is Bhakti era. Shiva is in Bhagavad relation. Okay. Next, 6th century political condition, Mahajanpadas, and after Mahajanpadas, then Maurya and chicken, post-Mauryan. Okay. So, question number 24. Shriyadvada, as I already explained you in the last piece, it was the middle path given by the Mahavira Swami. Okay, and it is related to the Jainism. Next, which of the following doctrine are associated with Jainism? Which of the following doctrines are associated with Jainism? Jainism कौन सा doctrine associated है? एक तो है अनेकतावाद, है, और एक है श्रेयादवाद, ठीक है। ये दोनों ही एक टर्म है, इन दोनों का ही मतलब मिडिल पाथ है, When it comes to शून्यवाद and शरीरवाद, ये है बुद्धिज्म की टर्म है. These are the terms of Buddhism. So this is actually option number A is correct. Next, the Jain philosophy holds that world is created and maintained by universal law. World is created and maintained by universal law. So Jain की philosophy यही है, universal law से related. किससे related है? Universal law से related. थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. As per Jain belief, universal law is essential and real form of universe. Universe and all its substances are eternal. All substances gradually changes. Previous form gives way to new ones without losing their inherent qualities. Jain believes that the universe is without beginning and universe didn't begin or end. There is no need to some almighty to create or manage the affairs. कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स अपने आप में ही कंप्लीट है. उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है कि ठीक है ये नीड यू. वो अपने आप में ही फॉर्म करता है चीजों को, अपने आप में ही डिके हो जाती है चीजें. ऐसे नहीं है कि इफ समवन डाइड अदर वन विल नॉट बॉर्न, ठीक है. सो ये यूनिवर्सल लॉ है, जो आया है वो जाएगा, जो गया है वो फिर से रीबर्थ होगा. तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल लॉ है, ये एप्लीकेबल है, ठीक है ना. चीज ग्रेजुअली चेंज होती है, ये भी यूनिवर्सल फिनोमिना है, ये इटर्नल है, एवरलास्टिंग है, ठीक है ना. तो जैन यूनिवर्सल लॉ में बिलीव करता था, ठीक है ना. there is no beginning and end of this universe. There is no beginning and end of this universe. This is the universal law. Next है अनेकतावाद. This is a core theory and philosophy of, अभी मैंने आपको बताया था, ये जैन की फिलोसफी है. किसकी? जैन की फिलोसफी. अनेकतावाद बोले तो मिडिल पाथ. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जैन फिलोसफी. तो जैन फिलोसफी रिवॉल्व अराउंड टू मेन डॉक्ट्राइन, अनेकतावाद and सेदवाद. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द अनेकतावाद, every being has numerous properties. The permanent property that continues constitute the nature of thing is called attribute. Absolutely correct. दोनों ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है ना. तो अनेकतावाद में का कहना क्या है कि जो एवरी बीइंग है ना, जो है ही हैज अ न्यूमरस प्रॉपर्टी, ठीक है. कहीं ना कहीं कुछ परमानेंट प्रॉपर्टी भी होते हैं, ठीक है ना. जो कहीं ना कहीं कह सकते हो कंस्टिट्यूट द नेचर ऑफ थिंग, उसको गुण कहते हैं. जो हम परमानेंट होते हैं किसी के अंदर गुण, ठीक है ना. तो काफी गुण होते हैं, बट कुछ चीजें परमानेंट होती है, कुछ चेंजिंग होती है. जो कोर नेचर होता है पर्सन को, कोर नेचर ही रहेगा, ठीक है ना. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डजंट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ वर्ल्ड. देखिए, Jainism है ना, he doesn't believe this concept that there is a final annihilation of world, मतलब कि वर्ल्ड का अंत होना. No, there is no end and no beginning of this world, ठीक है. The basic point of Jainism is non-violence Buddhism वाली था, ठीक है. Basic principle है इनका non-violence. What? Non-violence. Next, Yapanya was a sect, और ये ना जैनिज्म की सेक्ट है. किसकी सेक्ट है? जैनिज्म की सेक्ट है, और इसका ओरिजिन दिगंबराज में होता है. किसमें होता है? दिगंबराज. which move towards the which they didn't कह सकते हो कि they didn't supported women की they will get the moksha. दिगंबराज में ये था कि women cannot attain the moksha, ठीक है ना.
women cannot attain the moksha, whereas Shwetambar supported the women that women can attain the moksha. ठीक है, तो ये पानी जो सेक्ट है वो दिगंबरा की एक सेक्ट है. ठीक है. Next, with reference to the religion practice in India, the Stanapvasi sect. This sect, Stanapvasi sect. Earlier one was Yipanya sect. ठीक है ना, ये जैनिज्म की सेक्ट है. किसकी सेक्ट है? जैनिज्म की. श्वेतांबरा जैनिज्म किसकी? श्वेतांबरा जैनिज्म. दिगंबरा की कौन सी है? दिगंबरा की है यपन्या. ठीक है ना, दिगंबरा की सेक्ट है. श्वेतांबरा की सेक्ट कौन सी है? स्थनकवासी. Next, which of the following is the earliest holy book of Jain? 14 Purvas. क्या है? 14th Purvas were the earliest holy book of Jain. कौन सी है? 14th Purvas. ठीक है. And at the time next, in which of the following language were the earliest Jain literature compiled? अर्धमगधी. जो अर्लिस्ट जैन लिटरेचर है ना वो अर्धमगधी लैंग्वेज में कंपाइल की गई है. कौन सी लैंग्वेज में कंपाइल की गई है? अर्धमगधी. बोले तो 12 अंगास. जो 12 अंगास है ना, जो फर्स्ट जैन काउंसिल में कंपाइल किए गए थे, वो कौन सी लैंग्वेज में कंपाइल किए गए थे? वो अर्धमगधी लैंग्वेज में कंपाइल किए गए थे. कौन सी? अर्धमगधी लैंग्वेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉन एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बीइंग रिलेटेड टू पार्श्वनाथ? कौन सी? सम्मेद शिखर. कौन सी? जो 23rd ग्रंथकाराज है और जो सम्मेद शिखर प्लेस है उनसे रिलेटेड है ये. क्योंकि at this place he meditated for 84 days and he achieved parinirvana at this place. ठीक है ना, पार्श्वनाथ meditated 84 days and he attained parinirvana at this place, सम्मेद शिखर. Next question number 37. Which one of the following is not part of early Jain literature? अर्ली जैन लिटरेचर का कौन सा पार्ट नहीं है? ये है थेरी गाथा. कौन सी? थेरी गाथा. क्योंकि थेरी गाथा जो है ना वो बुद्धिज्म की स्क्रिप्चर है. किसकी स्क्रिप्चर है? बुद्धिस्ट की स्क्रिप्चर है. ओके, किसकी स्क्रिप्चर है? बुद्धिस्ट की स्क्रिप्चर है. नेक्स्ट, Who was the first founder of Shwetambar created during the first partition of Jain creed? Who was the first founder of Shwetambar creed during the first partition of Jain creed? The first founder of Shwetambar का जो था ना वो था स्थूलभद्रु. स्थूलभद्रु founded the Shwetambar. Who founded the Shwetambar? स्थूलभद्रु. Who stayed in north and covered their body with cloths. Who stayed in north, covered their body with cloths. भद्रबाहु का हमें पता है. They moved to the south and they were naked. Next, first disciple of Lord महावीरा कौन था? जमाली. इसको याद कर लीजिए. जैसे हमने गौतम बुद्धा की हमने डिसिपल याद किए ना, ऐसे महावीरा के याद कर लीजिए. जमाली was disciple. He was first disciple of Dasel. Shwetambara Angama was finally added at the Jain Council. कहाँ पे? पाटलिपुत्रा. कहाँ पे? पाटलिपुत्रा. Where the first Jain Council was held. First Jain Council was held at पाटलिपुत्रा. ठीक है ना. और यहाँ पे श्वेतांबर अंगमा भी was finally added at Jain Council. श्वेतांबर अंगमा was added in this council. Next, in which of the following place the first Jain Council was held? Patliputra. Next, read the following statement related to the Jain literature and choose the correct appropriate option. So the Shwetambara canon include the 12 Angas, correct? According to Shwetambara tradition, the Angas were compiled at the council head of Vallabhi. No, it was held at पाटलिपुत्रा. कहाँ पे? पाटलिपुत्रा. फर्स्ट काउंसिल जो जैन काउंसिल पाटलिपुत्रा में होती है, वहाँ पे ही 12 अंगास कंपाइल हुए थे. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट. फर्स्ट इज करेक्ट. इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44. Consider the following statement. Vardhana Mahavira mother was the daughter of Lichavi King Chetak. No, she was a sister. My mother was not daughter. She was a sister of Lichavi King Chetak. ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट. इनकरेक्ट. नेक्स्ट, गौतम बुद्धा मदर वाज प्रिंसेस फ्रॉम कोलियन डायनेस्टी. यस, गौतम बुद्धा की जो मदर थी ना वो कोलियन डायनेस्टी से. पार्श्वनाथ जो 23rd ग्रंथकारा से बिलोंग्स टू द बनारस. कहाँ से? बनारस, वाराणसी. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 45. विद रेफरेंस टू द एंशिएंट जैनिज्म, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? Jainism was spread in South India under the leadership of स्थूलभद्रा. नहीं, स्थूलभद्रा की लीडरशिप में तो नॉर्थ में स्प्रेड हुआ था ना. The Jain who remained
अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वॉज कॉल्ड श्वेतांबर। नहीं, स्थूलभद्रा जो लीडरशिप से स्थूलभद्रा वर कॉल्ड श्वेतांबरा। स्थूलभद्रा की लीडरशिप में जो थे ना उनको श्वेतांबर कहा जाता था, ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है जैनिज्म एंजॉय द पैट्रोनेज ऑफ कालिंगा किंग खरवाला इन फर्स्ट सेंचुरी, इसको ओल्ड रखते हैं। नेक्स्ट इन इनिशियल्स टू जैनिज्म द जैनिज्म वर्शिप्ड इमेजेस अनलाइक बुद्धिज्म। नो, दे नेवर वर्शिप्ड इमेजेस, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन सी रह जाता है, वो करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन? कौन सी जो जैन डॉक्ट्राइन पे एप्लीकेबल? द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिहिलेशन कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। डेफिनेटली। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज सॉल। यस, डेफिनेटली दे बिलीव इन सोल, तभी तो they abandon the agriculture practice. Jainism doesn't follow the agriculture practice, no. Okay. नेक्स्ट कर्मा इज द पेन ऑफ, क्योंकि उनको लगता है कि इवन सोल पार्टिकल हैज सोल, कहीं ना कहीं जो खाद्य होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, दे हैव सोल। उनको हम खेती करते हुए दे डाइट, कहते हैं ना जब खेत जोतते हैं तो उसमें वो सब चीज़ें मर जाती है, तो कहीं ना कहीं पाप कर रहे हैं, क्योंकि जैन फिलोसफी बिलीव इन सोल, इस हिसाब से दे अबैंडन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ठीक है। तभी most of the Jains are traders. Most of the Jains are traders. Next, karma is the bane of soul. It's true and must be ended. True. Yes. Okay. Got it. Next, all the options are correct. अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लें तो नहीं सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाधि मरण इज रिलेटेड टू विच फिलोसफी? समाधि मरण जो है वो कौन सी फिलोसफी से रिलेटेड? जैन फिलोसफी से रिलेटेड है। किससे? जैन फिलोसफी से रिलेटेड है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं समाधि मरण का क्या होता है? एट द एंड ऑफ देयर लाइफ, द लेटर फेज ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं ये कसम खा लेते हैं कि दे विल नॉट इनटेक फूड और लिक्विड, कुछ नहीं लेंगे। जब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे होते तब अलाउड होते हैं, ठीक है ना। तब बट कहते हैं ना कि वो कहीं ना कहीं अपने आप इस हिसाब से वो समाधि मरण ले लेते हैं कि ना खाना खाएंगे ना जल पिएंगे, अन्न त्याग करके वो समाधि पे बैठ जाते हैं। एंड दे abandon their soul, abandon the body. Next, the Ikshvaku ruler of southern India were antagonistic toward Buddhism. Okay. Next, the Pala ruler of eastern India were patron of Buddhism. ये तो करेक्ट है, पाला रूलर ऑफ बंगाल। वेल, इक्ष्वाकु जो रूलर है ना साउथ इंडिया के, दे फॉलोड वैदिक रिलीजन। विच रिलीजन? वैदिक रिलीजन। Also they supported Buddhism, but you cannot say they were the antagonistic towards Buddhism. So option number 1 is incorrect because they this ruler followed Vedic religion. Option number B is correct. पाला तो हमने पढ़ा है, ठीक है ना। Ajivika sect was founded by Makkali Gosala. Who founded this? Makkali Gosala. He was a disciple of Mahavira, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं ये जो Makkali Gosala था ना, he was a disciple of Mahavira. Disciple of Mahavira, and he founded this Ajivika sect. Who among these vendors that faith assigns everything, human is incapable? Ajivika, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जो सब कुछ है ना वो फेथ में ही, विश्वास पे ही टिका हुआ है, अदरवाइज इंसान के अंदर कुछ है नहीं विश्वास के अलावा, ठीक है। विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। ये दुनिया चल रही है विश्वास पे ही चल रही है, ठीक है ना। आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, कहीं ना कहीं विश्वास पे ही देख रहे हो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, विश्वास पे पढ़ा रही हूँ। तो एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज तो सब कुछ विश्वास पे ही टिका हुआ है, सब कुछ विश्वास पे ही टिका है। रिस्पेक्ट विच बिलीव इन अबाइडिंग नेचर ऑफ दिस आजीविका, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल प्लांट बट ऑल्सो रॉक्स, रनिंग वाटर, ये सब जैनिज्म में बोला है। मैनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैनिज्म वाज ट्रूली बिलीव्स इन सोल कि हर इस यूनिवर्स की एक एक चीज में सोल है, एक एक चीज में सोल, चाहे वो रॉक हो, पानी का झरना हो, कुछ भी हो,
सब में सॉल्व है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आचार्य एंड डॉक्ट्राइन, ठीक है ना, आचार्य एंड डॉक्ट्राइन। तो भद्रबाहु तो पता है किससे रिलेटेड है, जैन से रिलेटेड है। गौशाला आजीविका से रिलेटेड है, गौशाला आजीविका से। सी का 4, डी का 1, these two are eliminated। नेक्स्ट जो लघुलिशा है ये पशुपत से रिलेटेड है। नागार्जुना है शून्यवाद से रिलेटेड है, नागार्जुना शून्यवाद से रिलेटेड है, ठीक है, नागार्जुना शून्यवाद से रिलेटेड है, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, who used the cave of Barabar as the shelter home? Ajivika, which who used? Ajivika used the caves of Barabar, ठीक है ना, the shelter house, ठीक है ना, किसमें? Ajivika। The famous pilgrimage of Buddhists as well as Jains उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में है। तो कौशाम्बी में जो है ना, कौशाम्बी is place which is famous for both Buddhist and religious pilgrimage, ठीक है, which place? कौशाम्बी। Next question number 56, which one of the following statement is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो इसी थोड़ा फैक्चुअल है, को आप थोड़ा सा रट्टा मान लीजिए। तो आपको याद क्या रखना है, जो इंडिया की जो सबसे लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। आपको याद रखना, जो खजुराहो टेम्पल है वो चंदेला किंग ने बिल्ड कराया था। किसने? वो बिल्डर दिस चंदेला किंग। आपको याद रखना, होयसलेश्वर टेम्पल जो है वो शिव को डेडिकेटेड है। किसको डेडिकेटेड है? शिव को। होयसला टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिव, ठीक है ना, होयसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिव। When it comes to the statue of Gomtareshwar, ठीक है ना, which represents the last तीर्थकारा ऑफ जैन। तो इसमें क्या है कि जो ये सिटी है जहाँ पे गोमतेश्वर स्टैचू सिचुएटेड है, श्रवाण बेलंगोला, क्या है? श्रवाण बेलंगोला जो सिटी है ये कर्नाटका में है। कहाँ पे है? कर्नाटका में है। It is now dedicated to the last तीर्थकारा ऑफ जैन, ठीक है ना, it is now dedicated to this। Who built गोमतवेश्वर स्टैचू है? श्रवाण बेगाला जो कि कर्नाटका में है। किसने बिल्ड कराया? चेम्बंतराया। किसने? चेम्बंतराया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, महामस्तक्षभिका जो it is great religious event is associated with which one of the following? ये बाहुबली से रिलेटेड है। क्योंकि लास्ट के क्वेश्चन है, आई नो थोड़ा मगअप करना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा न्यू फैक्ट्स है, थोड़ा डीपली ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाऊँ। तो फैक्चुअल याद कर लीजिए। फैक्चुअल आप हिस्ट्री में जितना फैक्चुअल चीज़ों को बार बार याद करके याद कर लीजिए, इतना ही आपको चीज़ें जल्दी कवर अप होगी। अदरवाइज ज़्यादा डीप में पढ़ने के चक्कर में यू वोंट एबल टू क्लियर दिस है, नहीं कर पाओगे। आप जितना फैक्चुअल याद कर पाओ हिस्ट्री में उतना करो, नहीं याद होगा रट्टा मार लो, दीवार पे लिख लो, ठीक है। जो माँ बक्केश्वर है इज अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट है। ये लॉर्ड बाहुबली से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? लॉर्ड बाहुबली से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ये जो सेरेमनी है ये 12 साल में एक बार ऑर्गेनाइज की जाती थी कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटका में, ठीक है। जहाँ पे एक गुप्तवेश्वर है, जो सेंट ऑफ गुप्तवेश्वर जो ह्यूज स्टैचू है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो 18 मीटर का है, ठीक है। इट इज नॉट इट इज लास्ट तीर्थकारा, ठीक है ना। लास्ट तीर्थकारा से कोई लेना देना नहीं है। So now we are done with Chinese as well. From tomorrow we will move to the Bhakti era, ठीक है, थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। Thank you so much. Like, share and subscribe. Please do like, share and subscribe. आप देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि आपका जो 12 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका जितना भी घटना चक्र का है वो मैं कराऊंगी एग्ज़ाम से पहले सारा, ठीक है ना। बस आप बने रहिए।